ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇਸ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ px ਕੋਈ ਇਰਰਿਡਿਊਸਿਬਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ f of x और p dash be corresponding polynomial in f dash t, so again it will be irreducible. Suppose u and v, these are root of px and p dash t respectively in some field of extension e and e dash of f and f dash, then there exists a isomorphism fu to f dash v such that phi u is equal to v and phi alpha equal to alpha dash. So where alpha is element of f and alpha dash is element of f dash. So ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਥਿਓਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਗਈ p dash v irreducible polynomial ਹੋਏਗੀ। ਸੋ p dash is also irreducible. So ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ irreducible ਹੋਏਗੀ। So we know that sigma 1 ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। This is from fu to generated by px to f of u, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ f square x sigma 1, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਔਰ ਆਪਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ this its image fx plus generated by px and this value is equal to, so this is a f of u. clear ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਗਮਾ ਟੂ f dash t और over generated by p dash t, तो f v is also isomorphism, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ isomorphism ਹੋਏਗੀ such that sigma to f dash t plus generated by p dash t which is equal to f of v, f dash v. So this is a first isomorphism, so this is a second isomorphism. ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਪਿਛਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੈਪਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ this is a neta 2 and this is a and this values, so ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ fu right, और this is ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ f x over generated by px, और ये आ गया f dash t generated by p dash t, और ये आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ f v ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। now this mapping ਸਾਡੇ ਕੋਲ this mapping is from this sigma 1 to inverse, और ये मैपिंग सानू पता नीटे के बराबर सी, और ये मैपिंग साढ़े को सिग्मा 2 के बराबर सी।
तो फाई असी कंपोजिट मैप लै ली एफ यू टू एफ वी। सो फाई मैपिंग किदां दी हो गई, कंपोजिट मैप सिग्मा टू नीटा सिग्मा वन इनवर्स। ये किदे तो स्टार्ट हो रही, एफ यू तो एफ वी दे विच। सो दिस इज़ अगेन आइसोमॉर्फिज्म। सो पिछले लैक्चर च असी डिस्कस किया सी। नाल दे नाल फाई ऑफ यू दी वैल्यूज़ वी दे बराबर आ जाती सी और फाई ऑफ अल्फा अल्फा डैश दे बराबर आ जाता सी। सो ये असी जिहड़ी थ्योरम है ये आपां डिस्कस कर चुके। सो इस तो बाद असी अगली डेफिनेशन जिहड़ी साडे कोल आ जाती है वो आ जाती साडे कोल कंजुगेट एलीमेंट्स। सो कंजुगेट एलीमेंट नूं समझण तो पहला असी उहनूं एग्जाम्पल दे नाल अंडरस्टैंड करते हैं। मान लो साडे कोल कोई भी नंबर अलजबरिक है। सो जां असी इहनूं इदां कह देते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3। सो वट इज दिस, इट इज़ ए minimal polynomial of अंडर रूट 3 ओवर क्यू। ठीक है जी, मान लिया, मान के लिया ये साडे कोल मिनिमल पॉलीनोमियल है अंडर रूट 3 दी और किहदे उत्ते, क्यू दे उत्ते। सो नैचुरली अंडर रूट 3 तो इलावा भी ये रूट्स होंगे। सो ये रूट्स आ गए रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3r अंडर रूट 3 एंड माइनस अंडर रूट 3। सो इन्हों असी कहांगे दीज टू रूट्स दे आर कंजुगेट टू ईच अदर। सो जिहड़े रूट होंदे मिनिमल पॉलीनोमियल दे कंजुगेट टू ईच अदर। सो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 का कंजुगेट होएगा और इदां ही माइनस अंडर रूट 3 साडे कोल दूजे का कंजुगेट होएगा। सो असी दूजी एग्जाम्पल ले लैने। मान लो हुण एक्स क्यूब माइनस 2 ये भी साडे कोल मिनिमल पॉलीनोमियल है। So this is a minimal polynomial of 2 raised to power 1 by 3 over Q। So रूट्स केड़े केड़े आ गए थे, रूट्स आर एक हो गया 2 दी पावर 1/3, दूजा हो गया 2 दी पावर 1/3 ओमेगा और तीजा हो गया 2 दी पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब साडे कोल दिस एलिमेंट इज कंजुगेट टू दिस, सिमिलरली दिस एलिमेंट इज कंजुगेट टू दिस एलिमेंट। तो एक दूजे ते कंजुगेट हो गए। एलिमेंट ऑफ सी कंपलैक्स नंबर है and they are conjugate to each other। so ये conjugate दी definition। तो हुण आपां definition की लिखांगे। so definition लिखांगे कि अगर मेरे कोल 2 एलिमेंट्स हैगे आ, एलिमेंट्स A and B belongs to K, K की आ algebraic extensions, these are said to be conjugate over F। ठीक है, 2 एलिमेंट और ये दोनों एक दूजे दे कंजुगेट होणगे F दे उत्ते। F की है, सब फील्ड ऑफ K है। F है सब फील्ड ऑफ K।
ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਫ ਦੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ same minimal polynomials, if they are algebraic over f and satisfy same minimal polynomial तो सेम ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਏ ਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੇ ਆਰ ਕੰਜੂਗੇਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਥਿਊਰਮ ਇਜ਼, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਥਿਊਰਮ ਇਜ਼, ਮੰਨ ਲਓ f ਵੀ ਫੀਲਡ f ਡੈਸ਼ ਵੀ ਫੀਲਡ ਆ, so this f is isomorphic to f dash, f भी field है f भी, so दोनों आपस में isomorphics है। and this fx ये आ गया साढ़े को any polynomial b, any polynomial of degree greater than equal to 1 over f, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ f ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ f dash t corresponding polynomial over f dash। ठीक है जी। सो f dash t ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ corresponding polynomial ਹੋ ਗਈ। if e splitting field ਹੋ ਗਈ fx ਦੀ और e dash ਹੋ ਗਈ f dash x दी over f and f dash, if e and e dash are splitting field of f and f dash, बल्कि splitting field of fx and f of x and f dash t over f and f dash respectively, right। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ fx ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ f dash t ਦੀ ਹੋ ਗਈ। then ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, then there exist a isomorphism कोई ले लो psi e to e dash isomorphism e to e dash and on to such that psi of alpha is equal to alpha dash, और अल्फा f ਨੂੰ बिलोंग करेगा, psi of alpha equal to alpha dash for every alpha belongs to f।
So this is the statement, very lengthy statement of our theorems. ਹੁਣ ਆਪਾਂ proof ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ prove ਕਰਾਂਗੇ with the help of mathematical induction। ਸੋ अगर असी इनू विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करांगे, स्टेटमेंट आप समझ चुके हैं। लेट डिग्री ऑफ एफ एक्स ते इंडक्शन अप्लाई करांगे एन के बराबर, एन है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ये बारे सानू पता, ठीक है जी। सो डिग्री ऑफ साडे कोल ये बराबर आ गया, डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एन, और एन साढ़े को लैस दैन एन आ गया साढ़े को ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो सानू पता कि एफ एक्स दे जिस एक्सटेंशन च रूट आ वो किद्दां दी हो जाती है, लैस दैन इक्वल टू एन फैक्टोरियल। सो दिस इज ई एफ साढ़े को किद्दां दा आ गया, लैस दैन इक्वल टू एन फैक्टोरियल। सो इट इज़ ए फाइनाइट, यदि डिग्री होने करके ये साढ़े को फाइनाइट हो जाएगी। तो असी इंडक्शन ये लानी। मान लो फर्स्ट स्टैप, सपोज दिस डिग्री ऑफ ई ओवर एफ इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। सो इंडक्शन असी ये लानी, यदा मतलब ई और एफ साढ़े कोल बराबर हो गए। जे बराबर हो गए तो ऑल रूट्स ऑफ एफ एक्स किहदे विच आ गए, आर इन कैपिटल दिस एफ, ठीक है ना, क्योंकि ई च रूट होने सी, ई एफ दे बराबर आ गया तो रूट सारे उहदे साढ़े को एफ दे विच आ गए। एफ एक्स की डिग्री है एन, तो अगर मैं स्प्लिट करता तो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा एक्स माइनस A1 एक्स माइनस A2 और करते जाइए एक्स माइनस AN। अल्फा साढ़े कोल नॉन जीरो एलीमेंट एफ दा है, और ए आई ए एक्सटेंशन ई नू बिलोंग करता, और आई दी वैल्यूज 1 2 सो ऑन अप टू एन तक है। सो ये साढ़े कोल वैल्यूज आ गई। तो इट मीनस एफ डैश टी वो कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल आ, तो एफ डैश टी साढ़े कोल किद्दां दी आ जाएगी, ये आ जाएगी अल्फा डैश एक्स माइनस A1 डैश एक्स माइनस A2 डैश करते जाइए एक्स माइनस AN डैश के बराबर आ जाएगा। और सेम अल्फा डैश नॉन ज़ीरो एफ डैश नूं बिलोंग करेगा, और ए आई डैश किनू बिलोंग कर जाएगा, ई डैश नू कर जाएगा, और आई इज रनिंग फ्रॉम 1 2 सो ऑन अप टू एन तक। तो सेम साढ़े कोल कॉरस्पॉन्डिंग हुण इत्थे ई डैश की लोड़ नहीं, इत्थे भी एफ डैश आएगा, क्योंकि इत्थे ए आई किनू बिलोंग कर रहा, ई नू, ई एफ बराबर आ। सो ए आई भी एफ नू बिलोंग कर गया इन दिस केस। अगर इत्थे भी एफ नू बिलोंग कर गया तो ए आई डैश भी साढ़े कोल एफ डैश नू बिलोंग कर जाएगा। सो इट मीनस असी जिहड़ी इहदी एक्सटेंशन है वो एफ डैश के बराबर लै लवांगे, जिहड़ी ई डैश है उन्होंने असी एफ डैश चूज कर लांगे। जे चूज कर लिया तो क्लीयरली देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म कोई ना कोई आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, और वो किदां दी होएगी, साई विच इज़ फ्रॉम ई
टू ई डैश। वाई इट इज़ पॉसिबल? क्योंकि सानू गिवन दिता एफ इज़ आइसोमॉर्फिक टू एफ डैश, ये गिवन दिता। जे गिवन दिता ਇਹਦਾ मतलब की होया? ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ ਮੈਪ ਹੈ ਸਾਈ ਇਹ ई तो ई डैश च आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी, क्योंकि एफ किहदे बराबर आ ई दे, एफ डैश किहदे बराबर आ ई डैश दे। सो साडा रिजल्ट जिहड़ा वो प्रूफ हो गया फॉर डिग्री ई ओवर एफ इज इक्वल टू 1। नाउ assume that degree of E over F, assume एक ਤਾਂ है greater than 1 ਹੋਵੇ फर्स्ट let, और दूजा assume करो result is true for degree of E F less than n। मान लो कि साडा रिजल्ट जिहड़ा है उन्हां सारियां दी ट्रू है जां उन्हां सारियां स्प्लिटिंग, चलो इनू मैं इदां मैंशन कर देना कि उन्हां सारियां स्प्लिटिंग फील्ड लई ट्रू है। assume that result is true for all splitting field किरियां जी E over F which is of degree less than degree of E over F। ठीक है जी। सो असी अजूम कर लिया कि रिजल्ट साडे कोल जिहड़ा ट्रू है फॉर सारियां स्प्लिटिंग फील्ड लई जिन्हां दी एफ दे उत्ते डिग्री ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਵੇ, तो असी E ਦੀ डिग्री ओवर F ਲਈ रिजल्ट ਨੂੰ प्रूव करना। Now the given part is degree of E over F which is greater than 1। सानू पता जे तो F ते E ਦੀ डिग्री 1 होवे तो E तो F बराबर हो जाते, ਇਹਦਾ मतलब दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है घट्टो घट एक रूट ऐसा होएगा जिहड़ा E नूं बिलोंग करता होएगा पर F नूं बिलोंग नहीं करेगा। सो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट से U belongs to E such that U does not belongs to F, क्योंकि F ਇਹਦਾ प्रॉपर सबसेट बन गया तो एटलीस्ट एक रूट इस कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा। अगर मैं Px ले लिया मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ U ओवर F, ठीक है जी। सो ये मैथमेटिकल मैंने लिखा कि इट इज़ अ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ U ओवर S, और सानू पता कि मिनिमल पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल होंदी है तो इट मीन्स डिग्री ऑफ Px ग्रेटर दैन 1 हो जाएगा। जे साढ़े कोल मिनिमल पॉलिनोमियल हो गई और यदी डिग्री ग्रेटर दैन 1 हो गई तो ये कोरस्पोंडिंग पॉलिनोमियल केड़ी हो जाएगी, लेट साडे कोल, then it implies then P dash T be a corresponding polynomial
ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋ ਗਈ ਪੀ ਐਕਸ ਦੀ ਓਵਰ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਯੂ ਲਿਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਏ ਰੂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫ ਪੀ ਡੈਸ਼ ਟੀ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀ ਡੈਸ਼ ਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਓ ਪੀ ਐਕਸ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਯੂ ਦੀ ਔਰ ਐਫ ਐਕਸ ਦਾ ਰੂਟ ਵੀ ਯੂ ਆ तो सानू पता मिनिमल पॉलिनोमियल पी एक्स ये डिवाइड करेगा एफ ऑफ एक्स नू क्लीयर हो गया जे एफ ऑफ एक्स नू डिवाइड करेगा तो एफ ऑफ एक्स नू असी लिख सकते हैं पी एक्स इंटू क्यू एक्स के फॉर्म च और क्यू एक्स जिहड़ा है this qx it belongs to f of x ये एफ एक्स ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਜਾਏਗਾ एफ एक्स आ गया पी एक्स इंटू क्यू एक्स और साढ़े कोल ए क्यू एक्स ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ और therefore सेम दूजे पासे therefore साढ़े कोल एफ डैश टी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਟੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫ ਐਕਸ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫ ਐਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਕਿਊ ਐਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਊ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ ਐਫ ਐਕਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੀ ਡੈਸ਼ ਟੀ ਇੰਟੂ ਕਿਊ ਡੈਸ਼ ਟੀ ਵੇਅਰ ਕਿਊ ਡੈਸ਼ ਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਟੀ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਨ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਫਾਈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਐਫ ਯੂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ एफ डैश वी तक आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी सच दैट साई ऑफ यू विच इज इक्वल टू वी दे बराबर साई ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू अल्फा डैश दे बराबर और अल्फा जिहड़ा है इट इज एलीमेंट बिलोंग्स टू एफ ये साडे कोल उस फॉर्म दे विच इहदी वैल्यूज आ गई नाउ u क्योंकि रूट है तो मैं f ऑफ x माइनस u एफ एक्स ਨੂੰ डिवाइड कर सकता ठीक सो इट मीन्स f ऑफ x ਨੂੰ मैं लिख सकता x माइनस u इंटू f1 x और दूजे पासे f डैश टी ਨੂੰ रिप्रजेंट कर सकते टी माइनस वी इंटू f1 डैश टी के बराबर और वेयर दिस f1 x ये किनू बिलोंग करेगा ये f ऑफ x ਨੂੰ बिलोंग करेगा और दूजे पासे नॉट f x नाल ਇਹਦੀ एक्सटेंशन f u है एक्सटेंशन ਜਿਹੜੀ है सो इनू असी इदा लिख सकते हैं वेयर यदि साढ़े को फील्ड ऑफ एक्सटेंशन की है एफ दे नाल यू सो f1
एक्स किनू बिलोंग करेगा इन द फील्ड एक्सटेंशन, ये आ गई एफ यू फिर ये नाल एक्स, और दूजे पासे एफ डैश टी इट बिलोंग्स टू एफ डैश वी, और नाल आ गया साढ़े कोल टी दे बराबर। ठीक है, सो ये साढ़े कोल इस फॉर्म दे विच असी इनू भी एफ वन डैश टी लै लिया, इधर साढ़े कोल एफ वन लै लिया। सो आई राइट इन दिस वे, एंड दिस साढ़े कोल आइसोमॉर्फिज्म आ गई एफ यू तो दिस वैल्यूज। तो इफ आई डिनोट साढ़े कोल क्यू या फाई फ्रॉम आइसोमॉर्फिज्म एफ यू एक्स तो साढ़े कोल एफ वी एफ डैश वी ऑफ टी, इत्थे आ गया यू नाल दूजे पासे टी दे नाल। सो दिस फाई वन ये साढ़े कोल की बन गई एक्सटेंशन ऑफ फाई वन, ये साढ़े कोल की है आइसोमॉर्फिज्म, और फाई वन इट इज़ ए एक्सटेंशन ऑफ फाई, ये एक्सटेंशन है फाई दी, और नाल दे नाल साढ़े कोल की हुंदा फाई वन दी वैल्यूज़ एक्स दे उत्ते किहदे बराबर आ जाती, टी दे बराबर आ जाती। सो दिस इज़ ए एक्सटेंशन ऑफ आइसोमॉर्फिक एक्सटेंशन होगी साढ़े कोल उस वैल्यूज़ दी, और दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू फाई एक्स टी दे बराबर, और नाल दे नाल एफ डैश जिहड़ा साढ़े कोल फाई वन एफ एक्स है, और ए किहदे बराबर आ जाएगा एफ डैश टी दे बराबर आ जाएगा। राइट, सो यदि वैल्यूज़ सबस्टिट्यूट कर दईए, सो एफ एक्स नू आपां लिख सकते हैं फाई वन एफ एक्स किहदे बराबर है एक्स माइनस यू, फिर आ गया एफ वन एक्स दे बराबर। सो दिस वैल्यूज़ आ गई, और इनू ही असी जिहड़ा साढ़े कोल दिस वैल्यूज़ आ गई, और दूजे पासे इनू लिख सकते हैं असी वैल्यू पुट की सबस्टिट्यूट। सो दिस इज़ टी माइनस वी बाहर निकल गया, तो अंदर वैल्यू साढ़े कोल रह गई फाई वन एफ वन एक्स, और फाई वन एक्स किहदे बराबर है एफ वन डैश टी दे। सो दिस इज़ टी माइनस वी इंटू एफ वन डैश टी। सो दिस वैल्यूज़ आ गई एफ वन डैश टी। सो क्लीयरली वट वी गेट जिहड़ी साढ़े कोल ई है, इट इज़ ए स्प्लिटिंग फील्ड, इट इज़ ए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ किदी जी एफ एक्स ओवर एफ जनरेटेड बाय यू, और सिमिलरली ई डैश विच इज़ ए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ डैश टी ओवर एफ डैश वी। सो दोनों दी एफ डैश एफ ऑफ इत्थे एक्स आएगा, ओवर एफ कर लो, इत्थे ओवर एफ डैश कर लो। सो दिस इज़ अ स्प्लिटिंग फील्ड, दोनों दी आ गई। अगर स्प्लिटिंग फील्ड आ गई एफ ऑफ यू एफ डैश वी दे उत्ते, तो ई एक्सटेंशन एफ दिस कैन बी रिटन एज ई एफ यू, और दिस एफ यू इंटू ऑफ एफ दिस आ गया। सो सानू पता एफ यू डिग्री ऑफ एफ यू ओवर एफ विच इज़ ए
degree of px, it is minimal polynomial, so it is greater than 1. अगर greater than 1 है so it means ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ e ਤੇ fu ਦੇ ਉੱਤੇ, it is less than degree of e over f. So it means this result is true for this, क्योंकि यदि डिग्री ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋ ਗਈ। सो अगर डिग्री ਲੈਸ ਹੋ गई सो दिस ਇੱਥੇ एफ यू ही रखो जी, एफ यू ਇੱਥੇ आ जाएगा एफ डैश वी। अगर ਲੈਸ हो गई सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस सो देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म, तो कोई ना कोई आइसोमॉर्फिज्म होएगा जिहदा नाम असीं की रख लिया साई, जिहड़ी कि ई तो स्टार्ट हो के ई डैश ते जा रही है, ई डैश, एंड दिस इज ए ऑन टू, और ऑन टू विच एक्सटेंड an isomorphism ਕਿਹੜੀ ਜੀ phi ਲਈ ਸੀਗੀ, phi 1 ਸੀ extension, so this is fu ਤੋਂ fv, ठीक है जी। सो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਸੋ it means psi of alpha which is equal to alpha dash, so which prove our result। so ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ fu ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ phi ਮੈਪਿੰਗ। so this is extension, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ, so which prove our result with the help of inductions। so ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਥਿਊਰਮ ਆ, ਸੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ